உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ கண்ணீர் பெருகாதோ ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா இயேசு ராஜா உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ கண்ணீர் பெருகாதோ ராஜா இயேசு ராஜா ராமா இயேசு ராஜா கல்வாரி காட்சியை கண்டிடும் கல்மனம் கலங்கிய கரைந்திடுமே கல்வாரி காட்சியை கண்டிடும் கல்மனம் கலங்கிய கரைந்திடுமே கர்த்தாவே உம் அன்பை நினைக்கையில் எந்தன் உள்ளமும் நொறுங்கிடுதே உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ கண்ணீர் பெருகாதோ ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா இயேசு ராஜா வானமும் பூமியும் மாறிடும் போதும் உம் வார்த்தை மாறிடாதே வானமும் பூமியும் மாறிடும் போதும் உம் வார்த்தை மாறிடாதே வாழ்வினை தாங்கி உம் வார்த்தையால் என்னை வாஞ்சையாய் அணைத்தீரே உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ கண்ணீர் பெருகாதோ ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா இயேசு ராஜா என் மேல் நீர் காட்டிய அன்புக்கு ஈடாய் என்ன நான் செய்திடுவேன் என் மேல் நீ காட்டிய அன்புக்கு ஈடாய் என்ன நான் செய்திடுவேன் உயிருள்ள நாள் வரையும் பணி செய்தே உம் பாதம் சரணடைவே உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ கண்ணீர் பெருகாதோ ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா இயேசு ராஜா உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ கண்ணீர் பெருகாதோ ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா இயேசு ராஜா தடுமாறும் கால்களை கண்டே கண்கள் குலமாகி போனதையா தடுமாறும் கால்களை கண்டே
கண்கள் குலமாகி போனதையா. என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, தடுமாறும் கால்களை கண்டே கண்கள் குலமாகி போனதையா. சிலுவை என்று இறக்கி வைக்கவில்லை, கூர்மையான ஆணி என்று புறக்கணிக்கவில்லை. பாரமான சிலுவை என்று இறக்கி வைக்கவில்லை, கூர்மையான ஆணி என்று புறக்கணிக்கவில்லை. என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. தடுமாறும் கால்களை கண்டே கண்கள் குலமாகி போனதையா. தடுமாறும் கால்களை கண்டே கண்கள் குலமாகி போனதையா. குருதி சிந்தி பாடுபட்டும் மறுதலிக்கவில்லை, மரணம் சூழ்ந்த நேரத்திலும் விட்டு கொடுக்கவில்லை. குருதி சிந்தி பாடுபட்டும் மறுதலிக்கவில்லை, மரணம் சூழ்ந்த நேரத்திலும் விட்டு கொடுக்கவில்லை. என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. தடுமாறும் கால்களை கண்டே கண்கள் குலமாகி போனதையா. தடுமாறும் கால்களை கண்டே கண்கள் குலமாகி போனதையா. என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. என்னை யோசித்தீரே, என்னை நேசித்தீரே, எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே. நான் பாவிதான், ஆனாலும் நீ ரத்தம் சிந்தினே. என்று உம் பிள்ளை நான் இசையா, என்று உம் பிள்ளை நான் பாவிதான், ஆனாலும் நீ ரத்தம் சிந்தினே. என்று உம் பிள்ளை நான் இசையா, என்று உம் பிள்ளை நான். கல்வாரியின் மலை மீதிலே உம் பாடுகள் எனக்காகத்தான். கல்வாரியின் மலை மீதிலே உம் பாடுகள் எனக்காகத்தான். உம் கைகாலிலே
காயம் எல்லாம் நான் செய்த பாவமையா. உம் கைகாலிலே காயம் எல்லாம் நான் செய்த பாவமையா. நான் பாவிதான், ஆனாலும் நீ ரத்தம் சிந்தினி. இன்று உம் பிள்ளை நான் இயேசையா, இன்று உம் பிள்ளை நான். கன்னங்களில் வலிந்தோடிடும் கண்ணீரும் எனக்காகத்தான். கன்னங்களில் வலிந்தோடிடும் கண்ணீரும் எனக்காகத்தான். உன் கைகாலிலே வலிந்தோடிடும் திரு ரத்தம் எனக்காகத்தான். உன் கைகாலிலே வலிந்தோடிடும் திரு ரத்தம் எனக்காகத்தான். நான் பாவிதான், ஆனாலும் நீ ரத்தம் சிந்தினி. இன்று உம் பிள்ளை நான் இயேசையா, இன்று உம் பிள்ளை நான். மூன்றாணியார் என் பாவங்கள் சுமந்து தீர்த்தீரையா. மூன்றாணியார் என் பாவங்கள் சுமந்து தீர்த்தீரையா. மூன்றாம் நாளில் எனக்காகவே உயிரோடு எழுந்தீரையா. மூன்றாம் நாளில் எனக்காகவே உயிரோடு எழுந்தீரையா. நான் பாவிதான், ஆனாலும் நீ ரத்தம் சிந்தினி. இன்று உம் பிள்ளை நான் இயேசையா, இன்று உம் பிள்ளை நான். நான் பாவி அல்ல, எனக்காக திரு ரத்தம் சிந்தினி. இன்று உம் பிள்ளை நான் இயேசையா, என்றும் உம் பிள்ளை நான். हम सब आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। हम उस कलवरी को याद करेंगे जो हमारे लिए उसने क्रूस ढोया और सूली पे चढ़ गया। सिर्फ हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमें सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए उस कलवरी की पहाड़ी पर चढ़ गया। वचन कहती है भजन संहिता में कि हलवरों ने जैसे हल चलाती है उसकी सारे शरीर को वैसे हलवरों की जैसा कर दिया था, सिर्फ हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। सिर्फ हम एक बार नज़र उठा के देखेंगे कि
प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया है, कितने दुख सहे हैं, कितने दुख हो गए। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा। मेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई आवाज है जिसकी तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जिसकी तेरी पीछा कर रही है, तेरी ही तेज से तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने आज फिर तुझे पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी, प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी, तेरे दिल की हर मुसीबतें वही तुझसे छीन लेगी, वो खुशी के साथ देगी नया जीवन का किनारा, वो खुशी के साथ देगी नया जीवन का किनारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठाकर
देख ले लहू के धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू के धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज कितने लोग को अंदर एकदम ऐसा अनईजी फील हो रहा है? हो रहा है ना? कुछ जैसा रहने चाहिए रोज का दिन वैसा नहीं, कुछ तो अलग फील हो रहा है, एकदम वीकनेस और बोलते ना बहुत थका हो, ऐसा लगता है ड्रेन्ड हो गए, वीक हो गए। कितने लोग को लग रहा है ऐसा? How many सुबह of से you all are feeling uneasy today? मतलब कुछ दिमाग चल रहा नहीं, जैसा चाहिए वैसा कुछ हो रहा नहीं है, Things are not happening in our way. ऐसा लग रहा है आप लोगों को अंदर? Are you able to feel that way? हालेलुया। तो ये मुझे भी लग रहा है सुबह से। I am also feeling the same way. हर चीज तो नॉर्मल रहनी चाहिए आज। Everything should be normal. प्रेयर तो अपना सब नॉर्मल रहने चाहिए, करेक्ट? Prayer should be normal. प्रेयर नॉर्मल रहनी चाहिए कि नहीं? Prayer should be normal, right? पर आज व्हाई वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ अनईजीनेस? ऐसा क्यों लग रहा है अपने को? ठीक क्यों नहीं लग रहा है आज? तभी मेरे को समझा, I understood. क्योंकि आज का दिन Today, परमेश्वर को क्या क्या है, what happened today? Jesus Christ was क्या crucified. हो गया? Jesus was crucified. परमेश्वर को क्या किया? Jesus was crucified. तो पूरे स्वर्ग में The entire जब परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाया है, when they took Jesus on the cross, nailed him on the cross, तो स्वर्ग में खुशी मनाए रहेंगे कि दुख में रहेंगे? what would have happened in the heavens? समझा आप लोग को? दो गॉड अपना पर्पस के लिए आया है, Jesus came for our purpose, वो एक मैनकाइंड को एक सैल्वेशन मिलने वाला है। that for mankind there is a salvation through Jesus. फिर भी जो टॉर्चर The torture जीसस ने उनके बॉडी में से, which Jesus took on his body, वो सब लोग देख रहे थे। everyone was watching. कुछ लोग को खुशी महसूस हुआ, Some people were happy, पर पूरा स्वर्ग but the entire heavens, पिन ड्रॉप साइलेंस। there was silence in heavens. हालेलुया। Hallelujah. अगर आज का दिन आपको अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा है, If something is happening within you, एक हैवीनेस है, if you have heaviness in your heart, तो आप भी परमेश्वर के साथ जुड़े हुए इंसान ही that रहेंगे। means you are connected to God. हालेलुया। Hallelujah. इसके लिए आपको ऐसा फील हो रहा है। That's why you are feeling that. पूरे पब्लिक लोग ने रखा है इसका नाम गुड फ्राइडे। The public had kept this name good. क्या रखे? गुड फ्राइडे। It is a good Friday. एक्चुअली गुड फ्राइडे ही है, Indeed, it is a good क्योंकि Friday परमेश्वर मेरे लिए मरे, because God died for me. नहीं तो मैं मरा हुआ था, Otherwise, I would have been. मैं नर्क में होता, I would have been. मेरे पापों को क्षमा नहीं मिलता। I wouldn't have been forgiven. पर मेरे पापों के लिए, But for my sin, आपके पापों के for लिए your sin, एक बलि चढ़ाया गया था, one sacrifice, वो यीशु मसीह का बलि। and that is Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसके लिए स्वर्ग ना That's why heavens आज का एक दिन today बहुत शांत था। it was fully silenced. तो आप लोग भी You also, अगर आज मन में कुछ तो हैवीनेस है, if you have some heaviness in your heart, सुबह उठे और ऐसे लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, from the morning I woke up, I felt what is happening. नॉर्मल डे के जैसा आज है ही नहीं। It is not like a normal day. तो आप खुश रहने चाहिए That means you should be कि happy. आप और परमेश्वर किधर तो किधर कनेक्टेड है। That means somewhere you and God are connected. हालेलुया। Hallelujah. शुरुआत कैसे भी रहने दो, No matter how the beginning is, कैसा शुरुआत ना कैसे भी रहने दो, no matter how the beginning पर is, अंत हमेशा जीत में रहने चाहिए। but the end should always be हालेलुया। victorious. अंत कैसा रहने चाहिए? The end should be अगर victorious. भरोसा करते हो तो परमेश्वर के लिए ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करो। नो मैटर हाउ यू स्टार्ट, कैसे आप शुरू किए वो पता नहीं, बट एंड यू शुड फिनिश विद जीसस क्राइस्ट। अंत में आपको जीसस क्राइस्ट के साथ खत्म करना चाहिए जीवन। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर यहाँ पे जो भी मौजूद है,
whoever is here और जो भी today, नहीं आ पाए and the one who's और not, जो भी आने वाले, and the people who are going to come. परमेश्वर को हर चीज का अंदाज है God knows everything. और हर चीज का उनके पास कैलकुलेशन है। He has a calculation of everything. तो हम ये मत सोचे कि अरे इतना छोटा झुंड है। Don't think that we are a small crowd. परमेश्वर हमेशा छोटा झुंड को क्यों चूज करता है पता है? Why God chooses a small वो crowd? छोटे झुंड को रख के बड़ा झुंड बना। Because through that small crowd, Hallelujah. things can happen. और हमारे साथ कितने सारे एंजल्स हम काउंट भी नहीं कर सकते। We can't count the angels we have. हालेलुया। कितने लोगों को लगता है यहाँ पे एंजल्स लोग भी बैठे रहेंगे? How many of you all know that there are angels over here? ऑब्वियसली Yes, it's obvious. आज का दिन हर एक एंजल का काम होता है कि वो जाके जो भी दुख से, हैवीनेस से जो आदमी लोगों को जाके असिस्ट करे। Today is angels' job to assist the people who are feeling uneasy and heavy. Everybody has one job role when you come and select Christ in your life. सबको एक काम रहता है जब आप यीशु मसीह को चुनते हो. हर एक को है, Everyone. वैसे एंजल लोग को भी है। Angels को भी है. एंजल लोग का काम ये है कि they should assist you. The work of an angel is to help you, assist you. हालेलुया। सो हम आंखें बंद करके Let's close our eyes. we have come here in presence of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के चरणों पे आए हैं. उनके घर में आए We are at His place पूरे तन मन से with your whole heart, mind, and soul. परमेश्वर की जय जयकार करने हैं। We will worship the Lord. बल मेरे गढ़ मेरे आराधना हो तेरी। फिर से बल मेरे गढ़ मेरे आराधना हो तेरी। शरण मेरे आधार मेरे आराधना हो तेरी। शरण मेरे आधार मेरे आराधना हो तेरी। आराधना आराधना आपा पिता तुझको मिले। आराधना सब लोग आराधना आपा पिता तुझको मिले। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। सब लोग यीशु राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं। स्तुति से मगन हो जाओ सब दुख भूल जाओ। स्तुति से मगन हो जाओ सब दुख भूल जाओ। आराधना 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 आपा पिता तुझको मिले। आराधना आराधना आपा
देखता यीशु ராஜாவும் மாளிகையில் ராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன். சேர்ந்து எல்லாரும் यीशु ராஜாவும் மாளிகையில் ராப்பகலாய் அமர்ந்திருப்பேன். சேர்ந்து Come on. अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर मैं आपके पास आया हूँ, मेरा लाइफ को चेंज करो परमेश्वर. God, I've come to receive you today. You come inside my heart, Jesus Christ. यीशु ராஜாவும் மாளிகையில் ராப்பகலாய் உம்மை எல்லாம் துயரம் உம்மை துதித்தே मेरे बहनों भाइयों जो भी स्थान पे आप हो, Wherever you are, आज परमेश्वर आपको ढूंढ के आया है. God has come in search of you. परमेश्वर आप ही के लिए आया है. God has come for you. आज आपका लाइफ चेंज होने वाला है Today your life is going to change क्योंकि परमेश्वर आपके लिए हर चीज खत्म कर चुका है क्रूस because पर. God has already done everything for you on the cross. आज कोई भी यहाँ पे बैठे हुए बंदी नहीं Nobody over here today, are slaves or in bondage. कोई भी यहाँ पर आज गुलामी में नहीं है. आज यहाँ पे जो भी बैठे सब जन मुक्त है. Everyone who is here are free today. आप पापों से मुक्त है, You are free from your sins. आपके श्रापों से मुक्त You है, are free from your curse. बीमारी से मुक्त है, You are free from your sickness. आपके सोच विचार से मुक्त है. From your thoughts you are free. आज का दिन परमेश्वर आपको ढूंढ के आया मेरा भाई. Today is the day when God came in search of you. आज आप सब Today, परमेश्वर जो हमें किया है, whatever God has done for us, परमेश्वर जो हमारे लिए किया है, whatever God has done for सिर्फ us, वो आज हमें ध्यान देना है, we have to meditate upon that. बस और कुछ नहीं. Nothing more. वो आपसे कुछ नहीं मांगता है, He doesn't ask anything. मांगता है तो सिर्फ आपका दिल. The only thing He asks is your heart. आज अगर आप अपना दिल उनको देने के लिए तैयार है If you are ready to give your soul, your heart to Him, तो आज सिर्फ आप अपने आप को दीन बना लो. then you have to humble yourself. वो आपके बहुत नजदीक है, He is very near to you. सिर्फ आप उनसे बहुत दूर जा रहे हो. You are far away from Him. आप कितने भी दूर गए होंगे तो भी No matter how far you are, दौड़ आ जाओ. you can come running back. पिता के पास दौड़ के आ जाओ. Come towards Father. वो आपके लिए खड़ा है He stands for you. और आपके लिए हमेशा खड़ा है. And He always stands for you. நீர் என்னோடு இருப்பதினால் நான் இதுவரை ஜீவிக்கின்றேன். நீர் என்னோடு ஐயா இருப்பதினால் நான் இதுவரை ஜீவிக்கின்றேன். யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா.
ஷம்மா எங்களோடு இருப்பவரே. Come on, church. யெகோவா ஷம்மா எங்களோடு இருப்பவரே. सभी लोग यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा. என் குடும்பத்தை நீர் வேலியடைத்து இதுவரை காப்பவரே. என் குடும்பத்தை நீர் வேலியடைத்து இதுவரை காப்பவரே. யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா எங்களோடு இருப்பவரே. யெகோவா ஷம்மா எங்களோடு இருப்பவரே. யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா. Hallelujah. 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 So 2000 साल पहले 2000 years ago, आज का दिन परमेश्वर हमारे लिए क्या किए? what happened today? Jesus Christ. क्या किया हमारे लिए? Jesus Christ was crucified for us. क्या किए? He died for us. और करीबन यही समय पे शायद उनको मारा गया, पीटा गया और This was the क्रूस पे exact चढ़ा। time. This was the exact time when he was beaten, when he was striped off. जब वो क्रूस पे थे सिर्फ 7 शब्द बोले. When he was on the cross, he spoke 7 words. कितने शब्द बोले? 7. 7 बोले. उसमें 7वां शब्द क्या था पता है? What was the 7th word, you know? किसको पता है 7वां शब्द क्या है? What is the 7th word? कितने लोगों को कितना शब्द याद है? How many of y'all remember the words? What he spoke on the cross? हाँ चलो. Start say. हाँ 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 वेरी नाइस. Eli. चलेगा. हालेलुया. My God, why did you forsake? ये 7 शब्द में मैं पहला बोलता हूँ. कौन सा शब्द है? पहला बोलता है कि फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू. फर्स्ट ये बोले कि पिता इन्हें माफ करो क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं. हालेलुया. नहीं मालूम है तो माफ कर दो. They do not know what they do, so forgive them. और दूसरा शब्द ये बोलते हैं Second, he said, ट्रूली आई से टू यू सचमुच मैं बताता हूँ, टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज. आज तू मेरे साथ होगा. और थर्ड शब्द ये बोलता है And the third word is वुमन स्त्री, बिहोल्ड योर सन, ये तेरा पुत्र. बिहोल्ड योर मदर. और युवना से कहता है कि ये तेरी माता. चौथा वचन ये बोलता है, चौथा वर्ड, फोर्थ वर्ड इज माई गॉड मेरे पिता, वाई
Why you Why did you forsake me? forsaken me? मुझे क्यों छोड़ दिया आपने? पांचवा क्या बोलते हैं? Fifth word is I thirst. मैं प्यासा हूँ. छठवा क्या बोलते हैं? Sixth word is It is finished. सब कुछ खत्म हो गया. सातवां क्या बोलते हैं? Last word is Father, पिता into your hands आपके हाथों में I commend my spirit. मेरे जो आत्मा को मैं अर्पित करूँ. Hallelujah. Hallelujah. इतना ही बोले क्रूस पे. This was the 7 words he spoke on the cross. ये जो इसमें लिखे जो वर्ड बोले, Whatever words he spoke, हर वर्ड के पीछे एक रेवलेशन रहता है. there is a revelation for every word he spoke. इसमें सिर्फ मैं एक वर्ड के बारे में बात करने वाला भी. Today I am going to talk about one word. कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है. That is a very important word. जब परमेश्वर बोलते हैं इट इज फिनिश, When God said, Jesus said it is finished. क्या बोले? Jesus said it is finished. खत्म. It is finished. उसका अर्थ बहुत जन को ये लगा Many of them thought कि वो खत्म हो गई, that he is finished. पर हमको मालूम है But we know वो हमारे लिए हर चीज खत्म कर दी. he has already finished all the things for us. हमें जो चुकाना था कर्ज, Whatever debts we have to pay, वो उन्होंने चुका दिए. he paid off our debts. तो हम सब यहाँ पे फ्री है. Today we all are free. क्या है? We all are free. कोई पाप से पीड़ित है क्या? Is there anyone who's saying I am bonded by my sin? I am trapped in my sin. कोई है ऐसा? Is there anybody? आप कितना भी पापी रहो, No matter how big sinner you are, परमेश्वर का ब्लड आपका पाप को मुक्त कर देगा. God's blood speaks and it redeems you from your sin. परमेश्वर के ब्लड में इतना पावर है, एबिलिटी है, There is so much power in the blood of Jesus. और he has earned it. और उन्होंने खरीदा है वो. तो वो वर्ड के ऊपर मैं फोकस करने वाला आपको. I am going to talk about that word. ये जो बोलते हैं ना क्रॉस पे कि इट इज फिनिश, When he says it is finished on the cross, सबसे खुश कौन हुआ रहेगा बोलो? who was very happy? वेरी नाइस. कौन खुश हुआ? क्योंकि उसको मालूम है अभी परमेश्वर क्या हो गया, Because क्या हो गया वो what happened? अभी वो Jesus खत्म. अभी died. वो खुद बोल दिया इट इज फिनिश. Jesus himself said it is finished. तो उसको एक चीज नहीं मालूम था, But उसको एक चीज नहीं मालूम था, he did not know. ही इज अल्फा, ही इज ओमेगा, वही अल्फा है और वही ओमेगा ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड. वही शुरुआत और वही अंत है. वो फिनिश बोला If he says he is finished, तो इस सेटन को लगा कि अभी जीसस का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, गया हो. Satan was thinking now there is no problem of Jesus. पर उसको एक चीज नहीं मालूम, He was not वो aware. फिनिश बोला ना, When he said it, एक नया स्टार्ट के लेता हो. there is a new start. हालेलुया. Hallelujah. अगर आपके लाइफ में सोचे ना अभी सब खत्म हो गया, Whenever in your life when you think that everything is over, जीसस क्राइस्ट को अंदर ले लो, then you take Jesus एक in. नया बिगनिंग वो आपको दे There दे. is always a new beginning हालेलुया. when you take Jesus. एक नया लाइफ का बिगनिंग वो आपको हाथ में दे दे. There is a new beginning which Jesus gives in your hand. आपको क्या लगता है What do you think? परमेश्वर God, आप लोग इतना पाप करने के बावजूद भी, after you sinning so much, इतना डिसोबीडियंस रहने के बावजूद, despite your disobedience, क्यों परमेश्वर आपको चुन के रखा है? why did God chose and kept you कभी here? सोचे? Have you ever thought? कभी सोचे? दुनिया का हर पाप करते You do all the sins of the earth. करते कि नहीं करते, Do you sin or not? फिर भी परमेश्वर आप ही से प्यार करता है. Still God loves you. मैं एक मनुष्य को यहाँ पे बताऊंगा. I will talk about a man. योना करके एक मनुष्य था. There was a man named John. योना किसको मालूम है? How many of you all know John? मालूम है? ओ अब मैं बताता, अभी आपको मालूम पड़ेगा. जो मच्छी के मुंह में था बाद में बाहर आया, अभी मालूम पड़ा? No, there was a आपको man ऐसे named बताएगा तो ही मालूम. Jonah. क्या था? जोना का काम क्या था? What was the work of Jonah? क्या काम था उसका? What was his work? To go? क्या काम था? What was the work? अभी of ये Jonah? जॉन का क्या काम है? What is the work of John over here? क्या काम है? म्यूजिक बजाना है. मेरा काम क्या है? What is my work? प्रीच करने का.
अगर मेरे को उठा के उधर डाल देंगे, If I am sent there for music, उसको उठा के इधर डाला तो वो प्रीच भी कर देगा शायद, maybe if he's standing over here, तो John सब कर might- लेगा ना प्रीचिंग। हालेलुया। Hallelujah. पर मुझे म्यूजिक में डालेगा ना, But if you put me in music, इतना गंदा म्यूजिक बजाएगा, जैसा हम लोग गंदा गाते हैं उससे भी गंदा म्यूजिक बजा देगा। हालेलुया। hallelujah. तो ये जोना का काम क्या था? What was the work of Jonah? सिर्फ प्रीच करने का था उसको, Only to preach. और वो चूजन वेसल था, And he was chosen for preaching. था क्या नहीं? Yes or no? अभी ये इसको बोला, जीसस क्राइस्ट ने काम दिया। Jesus gave a work. आपको काम कौन देता है? पास्टर लोग काम देते हैं, ठीक है? Who gives you work? आप लोग को इधर चर्च में कौन काम देगा? Who gives you work in church? पास्टर ही देगा काम, करेक्ट? ये डाल, वो डाल, आइस डाल, फैन डाल, लाइट डाल, चेयर डाल, कौन बोलेगा आपको? Who gives you work in church? पर ये जोना को But this man Jonah, काम कौन देता है? who gave? डायरेक्ट गॉड। God gave him a task. उसको कोई दूसरा प्रॉफिट आके काम नहीं दिया। No prophet came and gave him work. ये बंदे में इतना, क्या बोलते हैं, इतना डेयरिंग है, देखो This guy had so much daring कि वो गॉड का बात ही नहीं सुनता है। that he's not listening to God. गॉड ने किधर बोला उसको जाके प्रीच करने? God asked him to go to Nineveh किधर गया था? और ये भाई किधर भाग रहा है? and he is going elsewhere. उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। He's going in the opposite direction. आपको मालूम निनेवा जो है वो जगह, The place Nineveh, अभी वो कौन सा जगह पता है क्या? you know which place? it is? आई थिंक वो क्या है, इराक है लगता है, इराक। Today it is Iraq. इराक का साइड है ना, वो उधर है। It is the place of Iraq. In गॉड ने today. उसको, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, For example, गॉड ने बोला इराक जा, God said go to Iraq. ये भाई ऑपोजिट डायरेक्शन स्पेन में घूम रहा है, He is trying to go to Spain क्योंकि वो जब जा रहा था ना वो जगह, because when he was going, वो जगह अभी स्पेन है। because that place today is Spain. हालेलुया। Hallelujah. टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। It's totally opposite the way वो we वो travel. कहाँ से क्या Tarshish. तार्शिश वो एरिया में भाग रहा है। He's going to the place of Tarshish. जाना था इधर, He has to go ये to भाई इधर भाग Nineveh. रहा है। He is going to Tarshish. आपको मालूम है कितना किलोमीटर दूरी पे भाग रहा था वो? You know the kilometers he was running? कुछ 3000 माइल्स के ऑपोजिट में भाग रहा है। He was running away in 3000 miles in the opposite direction. हालेलुया। वो भी गॉड का स्ट्रेट ऑर्डर था। And it was order straight from God. आज हमको भी पास्टर कुछ बोलते, Today pastor says इधर something. कौन पास्टर का बात सुनते ही सुनते हैं? बाकी कोई सुनते ही नहीं, सुनते नहीं सुनते कि नहीं सुनते? हालेलुया। हाँ हाँ पास्टर, हाँ, बाद में सीधा गिर लूं। गॉड ने योना को बोला कि निनेवे में जा, When God said to Jonah, go to Nineveh, और उधर जाके सिर्फ तू क्या कर? what do you do? प्रीच कर बोला, बस When- इतना ही बोला, और कुछ काम नहीं। Just go and preach there. उसमें ये नहीं बोला तू पापों से चंगा कर सबको, God did not say you go and save them from sins. रोगियों को चंगा कर बोला, Did he say that go and heal people? शैतान को भूत को भगाने बोला, Did he say go and cast out demons? कुछ नहीं। सिर्फ जाके बोला जा प्रीच कर। He said go and give my word. ये बंदे को अभी फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, मेरे को सिर्फ गॉड बोलेगा ना तू जाके प्रीच कर, if he says go and preach, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द एंटायर वर्ल्ड, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा बिकॉज आई लव प्रीचिंग। क्योंकि मुझे पसंद है, क्या? आई लव प्रीचिंग। क्योंकि मुझे पसंद है सुसमाचार बताना। आई कैन प्रीच फ्रॉम द मॉर्निंग, सुबह से लेके नाइट, रात तक, नाइट, पूरा नाइट, मॉर्निंग, वापस सुबह, आई कैन कीप प्रीचिंग। मैं सुसमाचार बता सकता हूँ। अब Now ये जोना को this Jonah, सिर्फ गॉड ने बोला जाके प्रीच कर, God said go and preach. इसको इतना तकलीफ हो रहा है उसमें। He had so much problem in preaching. हालेलुया।
अभी मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ प्रीचर, I'm a preacher. मेरे को सिर्फ इधर आके मैं प्रीच करता हूँ क्या? Am I only coming and preaching away? सिर्फ आके प्रीच करते कितना लोगों को लगता है ऐसा? मैं सिर्फ मैं आता हूँ प्रीच करता हूँ? How many of you all think that I do come here and I do only preaching? नहीं माय फ्रेंड्स, No. आपको ऐसा लगता है? You may be thinking like that. आप आने से पहले मेरे को आके सब सेट करना पड़ता है, I have to arrange things over here. कूलर लगाना पड़ता है, I have to keep the cooler. आइस लाना पड़ता है। I have to bring things. अपार्ट फ्रॉम प्रीचिंग Preaching मेरे को ये short. सब करना पड़ता है। I have to do all this. ये बंदे को ऐसा नहीं था, For him it was not like सिर्फ that. जाके प्रीच करने का था, Only go and give उसमें the इसको word. इतना तकलीफ। He had so much problem. तो योना 1 में आप पढ़ेंगे ना? The book of Jonah, chapter 1. मत पढ़ो, अभी टाइम नहीं है, मत पढ़ो, घर जाके पढ़ लो। मैं आपको शॉर्ट में बताता योना के बारे में। I will tell in short. ये योना ने गॉड का बात सुना नहीं He did not listen to God और ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, and he went to the opposite direction. एक शिप में आके बैठ गया। He was in a ship. वो शिप ऐसा पानी में रोलिंग पिचिंग आप ये सब हो रहा है। There was a great storm in the sea. वो अंदर जो शिप के अंदर जो आदमी लोग थे People inside the ship, वो लोग सब डर गए। they were afraid. बोलता कभी ऐसा हुआ नहीं। Never happened like this. क्या? Never happened. कभी ऐसा हुआ नहीं, हमारा शिप डूब जाएगा अभी। Now our ship will sink. कोई तो हमारे शिप पे कल्प्रिट है। There is a culprit in the ship. किसमें है? There is a culprit. हमारे शिप में कल्प्रिट है और ढूंढ रहे कौन है वो। And they are searching. फिर मालूम पड़ा ये भाई है। And then they come to know because of him. जोना बोलता है Jonah says, भाई मुझे उठा के फेंको, तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म। throw me into the sea. क्या? Your problem will be solved. आपके लाइफ में एक को उठा के फेंक देगा ना, प्रॉब्लम खत्म। One person, if you remove and throw in the sea, your problem solved. अभी ये मालूम पड़ा आपका इसमें योना कौन है। Now you have to know who is the Jonah. अगर चर्च में प्रॉब्लम चल रहा है If there is a problem in the church, तो ये देखने का प्रॉब्लमेटिक पर्सन कौन है। then you have to see who is the problematic उसको उठा के person. बाहर फेंका, If that person is thrown, तुम्हारा शिप बरोबर सेल हो जाएगा। then your ship will go to its destiny. इसके लिए किसको भी उठा के फेंको मत। Don't throw anybody. We are here to help people. हम यहाँ पर लोगों को मदद करने के पर लिए. जोना खुद बोला Jonah is saying, तुम लोग जो ढूंढ रहे हो करपाड़ में ही है, the one whom you are searching, it's me. मुझे उठा के पानी में फेंक दो। Take me and throw me. ये स्टोरी आपको मालूम है ना इतना तक? You all know this story. जैसा उसने फेंका The moment they throw him, तो उसको बचाने कौन है? who came to save him? कौन है? मच्छी है। Fish came to save him. तुम लोग को फेंका तो कोई नहीं आने वाला, कोई आएगा आप लोगों को Thrown, बचाने। nobody is going to come. तो गॉड सेंड फिश टू सेव whom? परमेश्वर ने वो मच्छी को भेजा जोना को बचाने. अब योना किधर है? Now where is Jonah? मच्छी के पहला बोट के अंदर था, First he was inside the ship. बाद में पानी के अंदर था, Then he was inside the ship. अभी किसके अंदर हो? Now he is inside the देवया उनकी stomach of the fish. इज्जे से जाके प्रीच करता था If he would have preached, तो इतना सब ड्रामा होता ही नहीं था। then there wouldn't have been these problems. अभी उसके एक उल्टा डिसीजन की वजह से Because of his one wrong decision, एवरीथिंग चेंज। सब बदल गया. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, थिंक बिकॉज ऑफ योर वन डिसीजन आपका एक निर्णय की वजह से कितना प्रॉब्लम आज आप लोग और आपके साथ वाले लोग फेस कर रहे हैं। you and the people with you are facing. आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपका एक गलत decision, your one wrong बिजनेस decision, फेल हो गया रहेगा। business would have failed. आपका एक रॉन्ग डिसीजन Your one wrong decision, फैमिली खत्म हो गया रहेगा। family would have finished. आपका एक रॉन्ग डिसीजन One wrong decision, मिनिस्ट्री डूब जाएगा। ministry में. जस्ट वन डिसीजन, इफ यू टेक वन रॉन्ग डिसीजन अगर एक गलत निर्णय ले लिया इट इज गॉन। तो फिर खत्म. टाइम कम है, बट आई विल गिव यू अ रेवलेशन। मैं आपको एक प्रकाशन बताऊंगा. जैसा ये फिश योना को अंदर लिया How the fish took Jonah. तो जोना बचा कि नहीं बचा? He was saved or बराबर।
गॉड ने उसको बचाने के लिए फिश को भेजा, God sent the fish. ताकि वो So what? हालेलुया। अभी तक हमको यही मालूम है कभी जोना मरा ही नहीं था, करेक्ट? We all thought that Jonah did not die. और एक्चुअली क्या हुआ था उधर? But Jonah, actually what happened to Jonah there? वो आप लोगों को और मुझे अभी तक ये मालूम है कि जोना जिंदा था, करेक्ट? We all thought that Jonah was alive, एक्चुअली जोना मर गया था। but Jonah actually died. वो वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे We will read now और हम ये सच्चाई देखेंगे and we will see the truth, कि एक्चुअली वो जिंदा था कि मर गया था। whether he was alive or he died. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। It's important. जब आपको वो मालूम पड़ेगा ना, When you know that क्योंकि जोना के बाद after Jonah, जीसस क्राइस्ट आए। Jesus Christ came. समझे? जोना के बाद जीसस क्राइस्ट आए, इतना तो मालूम है ना आप लोगों को? Jesus came after Jonah. करीबन 800 साल के बाद ही आया। Almost like 800 years. 800 के डिफरेंस में जोना ने ऑलरेडी एक प्रोफेसी रिवील किया था। Jonah already gave one prophecy. वही हम देखेंगे अभी। We will see that. तो जोना में 2 में Jonah chapter 2. 7वां वर्ड पढ़ो बस। When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, ये ना आपको कनेक्ट किया तो ही आपको समझेगा। If you are able to connect, you will understand. तो 7वां वर्ड क्या बोलता है? जोना के मुंह से क्या आता है? हिंदी में रीड करेंगे 2 में 7. यीशु ने उनसे कहा, मटके में पानी भर दो। जोना. जोना में En atma, en கோயில் கர்த்தரை நினைத்தேன். हालेलुया। அப்பொழுது என் விண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திலே உம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது. हालेलुया। और कोई पढ़ने का पढ़ लो। हिंदी में नहीं. என்னில் கோயில் கர்த்தரை நினைத்தேன். அப்பொழுது என் விண்ணப்பம் உமது பரிசுத்த ஆலயத்திலே உம்மிடத்தில் வந்து சேர்ந்தது. हालेलुया। ये जो 7वां वर्ड है ना, 7वां वर्ड, His 7th word ये जो 7 जोना 2 में 7 में in the book of Jonah chapter 2 verse 1. जो ये बोले, The one who says, ये एग्जैक्टली यही चीज जीसस क्राइस्ट ने क्रॉस पे 7th वर्ड पे भी बोले, सेम है, this थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। same word which Jesus said on the cross. अगर आपको ये समझना है ना, If you want to तो understand, एक जन ये वर्ड रखो, one person. अब मैं दूसरा वर्ड दूंगा ना, वो दोनों को मैच करके देखो। जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे क्या बोले? लूक में 23 में 46। In the book of Luke, chapter 23, verses 46. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. हालेलुया। जोना ने क्या बोला 7वें में? ऐसा ऐसा एक जोना और लूक, अभी दोनों पढ़ के देखो। जोना और जीसस क्राइस्ट दोनों ने 7 का 7, ये 7वां वर्ड और ये 7वां वर्ड क्या बात की दोनों? When my soul fainted within me. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. हालेलुया। समझा आपको? जोना भी उसका स्पिरिट को दे दिया था, गया उसका स्पिरिट। Jonah also gave up his spirit. His spirit almost left him, फिर जाके रो रहा था वो। and then he cried. परमेश्वर उसका पुकार को सुना God heard his cry, और उसको वापिस से एक जीवन दिया। and God gave him one more chance. वापिस से जीवन क्यों दिया मालूम क्या? Why he gave him life again? ताकि वो फिर से जाके उसका जो अधूरा काम जो था So that unfinished task, वो पूरा करे। he should finish it. हालेलुया। Hallelujah. आप लोग कितना भी दूर भागो, No matter how far you run, कुछ भी कर लो, no matter what you do, आपके ऊपर का जो कॉलिंग है the calling which God has placed और in your life, आपको रख के जो परमेश्वर करने वाला है, and the work what God is going to do वो through आपको you, ही रख के करेगा वो। only you will be able to do. हालेलुया। Hallelujah. किसको रख के करेगा? Only आपको ही रख के करेगा। it will be done through you.
3 दिन 3 रात जोना किसके पेट में था? Where was Jonah for 3 days? He was inside the stomach जीसस of क्राइस्ट का भी सेम फॉर्मेट। the same format of Jesus. 3 दिन किधर थे? Where he was for 3 days? किधर थे? पाताल लोग गए थे वो। सिर्फ जोना को क्यों एक लाइफ दिया परमेश्वर ने? Why did God give a life to Jonah? ताकि वो निनिवे में जाए So that he goes to Nineveh और परमेश्वर के वचन सुनाए बस। and he should give the word. ये प्रीचिंग का पावर ऐसा होता है। This is the power of preaching. तो वो मच्छी ने लेके गया जोना को उधर, And when the fish took him, उधर वॉमिट किया, उसको बाहर निकाला। the fish vomited ये बंदा उधर गया and he went to Nineveh. और उसने क्या किया? And what he did, he क्या preached. किया? वहां के लोग को प्रीच किया। He preached finally. आपको पसंद है, Whether you like ये पसंद नहीं है, or whether you not. आपका अगर प्रीचिंग का गॉड ने गिफ्ट दिया है God has given you the gift और of आपको preaching. चूज किया है And if he has तो chosen आपको ये करना ही पड़ेगा। you, then you will have to do it. अगर आप योना का बुक पूरा पढ़ भी लेंगे ना, Even if you read the full book of इसका Jonah. जैसा सैड प्रीचर में देखा ही नहीं। I have not seen a sad preacher like him. हालेलुया। Hallelujah. ये प्रीच करने के बाद भी सैड था। After preaching also he was sad. तो आप पढ़े क्या नहीं इसके बारे में कभी? Have you all read about him? वो प्रीच किया, He preached, उसका काम किया, he did his फिर work. भी बंदा बहुत दुख था। Still he was unhappy. वो हैप्पी प्रीचर नहीं था, He was not a happy preacher. पर प्रीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुसमाचार बताना ये बहुत एंड टाइम्स में हम सब आखिरी समय पर है। कौन सा टाइम में? आखिरी समय। अभी आप लोग सबका ऊपर प्रीचिंग का परमेश्वर स्पिरिट डालेगा। God will give the spirit of preaching on everyone. किस पे डालेगा? On everyone. किस पे डालेगा? On everyone. सब पे डालेगा। छोटा के ऊपर भी डालेगा, बड़े के ऊपर भी डालेगा। The spirit will come on everyone, small and the big. ये गॉड ने बोला है। God said, एंड टाइम में in the end days, जो भी मांगेगा, whoever asks, कोई भी, whoever, उसके ऊपर मैं मेरा क्या करेगा? I will pour my spirit ये on नाम him. ये हालेलुया। मेरा आत्मा उनके लूंगा। मेरा बहनों भाइयों, My dear brothers and sisters, यहाँ पे जो भी बैठे, people who are here, हम कितने छोटा झुंड है, करेक्ट? we are a small और crowd. परमेश्वर के नजर से हम कैसा है, हम जल्दी देख के खत्म करने वाले But in front, the eyes of God, how we are. आइजाया 60 में 22। In the book of Isaiah, chapter 60, verses 22. A little one हाँ shall become 1,000, हाँ and a small one a strong nation. हाँ, I, the Lord, will hasten in its time. हालेलुया। और कोई पढ़ेंगे? Isaiah 60:22. சிறியோன் ஆயிரமும் हाँ சிறியோன் மனித ஜாதியுமாவான். हम्म கர்த்தராகிய நான் ஏற்ற காலத்தில் இதை தீவிரமாய் நடப்பேன். हालेलुया। ये जो छोटा झुंड है ना, This small crowd, इसको ही परमेश्वर हजारों में चेंज करेगा। God will change it into thousands. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर खुद बोला वो मेरे उनके टाइम में करेगा वो। He said, in my time, और I, the Lord, सबसे बड़ी बात वो खुद करेगा बोले। and he says he will do it. हमको कुछ नहीं करना है, We don't have to do it. हमको सिर्फ एक छोटा झुंड को संभाल के रखना है बस। We have to take care of these people. क्या बड़ा झुंड लिखा है क्या? बड़ा झुंड है कि छोटा Is झुंड it है? written? अपना कौन सा झुंड है? We are a small crowd. तो हम भाग्यशाली। हालेलुया। Then we are blessed. हमको हजारों में बनाएगा He will make us into और thousands. वो खुद बनाएगा, And he himself will do उसके it. राइट टाइम पे बनाएगा। And at his right time he will do it. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? What are we doing? हम तैयार हो रहे हैं। We are in the preparation. क्या हो रहे हैं हम? We are in the preparation. तैयार हो रहे हैं। आपको प्रीचिंग का पावर पता है क्या? You know the power of preaching? जीसस क्राइस्ट Jesus Christ बोले said, कि अब खत्म हो गया, it is इट finished. इज फिनिश बोले ना। फिनिश बोला तो आदमी क्या करनी चाहिए? बैठनी चाहिए कि नहीं? If it is said it is finished, then someone should, वो परमेश्वर है, he is God. अगर वो बोलते तो उसका अर्थ तो वही है ना। It is finished means he should sit at one place. वो परमेश्वर वो खुद भी एक प्रीचर थे।
He himself is a preacher. क्या है वो? He, वो हाई प्रीस्ट थे वो। he is our high priest. आपको एक आप अगर अगर आप प्रीचर है तो If you are a preacher, आपको एक न्यूज देता हूँ। I am giving you a news. आंधी आने दो, तूफान आने दो, Whatever thunderstorms may come, आप कोई भी सिचुएशन में रहे हो, whatever situation you are in, आपको प्रीचिंग से का जॉब से रिटायरमेंट नहीं मिलेगा। there will be no retirement to your preaching. हालेलुया। Hallelujah. प्रीचिंग का एक जॉब है जो जिसमें रिटायरमेंट क्या नहीं होता है। There is no retirement to your तुम preaching job. अब कल मरने वाले हैं If you're going to die तो प्रीच tomorrow, करके मरो। then you preach and die. दैट इज व्हाट इट इज। यही है। बिकॉज जीसस ने बोला इट इज फिनिश्ड, जैसे परमेश्वर ने बोला सब खत्म, बट इट वाज नेवर फिनिश्ड। वो कभी खत्म नहीं हुआ। वो बंद जीसस क्राइस्ट ने क्या किया मालूम क्या? What he said, did you know? उनका जीवन को देने के बाद भी After giving his spirit, उन्होंने एक काम किया। he did one thing. क्या किया मालूम क्या? He went. किसको पता है? How many of you all हम know? पढ़ेंगे वो और खत्म कर दे। Let's read that last word 1 पीटर 3 में 19, in the book of First Peter. 3 में 19। एक पत्रस में 3 में 19 रीड अब करेंगे। पढ़ के हम खत्म करने वाले। By whom हाँ। also he went हाँ। and preached to the spirits in prison, हाँ who were formerly disobedient, when once the divine long suffering waited in the days of Noah, while the ark was prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through water. हालेलुया। इधर अपना जीवन देने के बाद भी उन्होंने जाके उधर क्या किया? क्या किया? Preach किया। हिंदी में पढ़ो। 19 3 में 19। उसने जाकर उसने जाकर, कौन जाकर? Jesus. जीसस क्राइस्ट जाकर। तभी जाकर जब जिंदा थे तभी, जिंदा थे तभी भी उनको मार के पूरा खत्म करके उनका काम उधर भी किया। This verse is not talking about when he was alive. सबको लगा कि चलो अभी खत्म हो गया जीसस क्राइस्ट। Everyone thought now Jesus अभी is done. वो Now that वहां से he went from there, किधर गए? where he went? यदि आत्माओं को हाँ, To the prison. क्या क्या? He went उधर and, जाके भी प्रचार किया। he went and preached to the prisoners. तो एक चीज मुझे मालूम है I know one thing, कि मेरे लाइफ में my life, प्रीचिंग से मेरे को रिटायरमेंट कभी मिलेगा ही नहीं। there will be no retirement. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि जीसस को भी रिटायरमेंट नहीं था, Because Jesus also वो was, तभी भी प्रीच किए, he preached on earth. मरने के बाद भी जाके नीचे प्रीच करके। After death also he preached in the prison. प्रीचिंग का वो पावर होता है। That is the power of preaching. प्रीचर हैज नो एंड। कोई अंत नहीं होता है। क्या? गॉड वॉज वर्ड, परमेश्वर शब्द था वर्ड इट्स हिमसेल्फ वॉज गॉड। और उस शब्द ही परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। जो भी प्रीचर बनेंगे, Whoever is the preacher, इनफैक्ट सबको गॉड का बारे में प्रीच करना है। whoever is there on the earth, everyone should यहाँ preach. पे जितने लोग भी बैठे, Whoever is sitting here, आप प्रोफेशनली कोई भी रहो, whatever profession you are, कुछ भी रहो, whatever you आप are, अमीर रहो, गरीब रहो, rich or poor, आपको ज्ञान रहो, ज्ञान नहीं रहो, whether you have knowledge or not, पर आपको परमेश्वर के बारे में बात करना है। but you will have to speak about तो it. यहाँ पे बैठे सब लोग कौन है? Who is क्या है? We all are Preachers. preachers. आपको परमेश्वर कौन सा अलॉट करके देगा वो आपके ऊपर है। What God allots you, that's totally on. पर हमको क्या करना है? तैयार होना है। We have to become ready. अभी खड़े रहेंगे सब जन। Now we will raise up to our feet. घोड़ा कैसे तैयार होता है? How the horse gets ready? हमेशा तैयार रहना है। We have to always be ready. आपके लाइफ में आपको हमेशा क्या करना है? What you have to do? आपको तैयार रहना है। You always have to be ready. कभी भी बुलावा आ सकता है, Anytime you're calling me. कभी भी। एक घोड़ा कैसा तैयार रहता है बैटलफील्ड में? How the horse gets ready for its battle? रेडी करते हैं ना, उसके ऊपर बैठ के भागने के लिए। It gets ready because it will be used for war. क्या झगड़ा चलो तभी जाके घोड़ा को शॉक्स पहनाओ, शू पहनाओ, ये पहनाओ, वो पहनाओ, तभी करते क्या? When the war is on, at that time, do they dress up the horse? ऐसा है? Does it happen that way? No. सोल्जर लोग देखो हमेशा तैयार रहते हैं। Soldiers are always ready. आज हम वैसे घोड़े हैं।
We are like that type of horse. एक And वचन पढ़ेंगे let's read one word. प्रोवर्ब्स में 21 में 31 नीति वचन में chapter 21 verse 31. The horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord. हालेलुया। आप लोग को तैयार रहना है, You have to be ready. फास्टिंग में तैयार रहना है, You have to be ready in your fasting, प्रेयर में तैयार रहना in है, your prayer life. पर आपको जीत से परमेश्वर से आएगा। But the victory is from the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जीत परमेश्वर से आएगा, The victory is और from the तैयार Lord. आपको रहना है। But readiness is from you. एक अच्छा जॉब चाहिए तो तैयार रहना है, If you want a good job, be ready. आपको एक घर चाहिए तो आपको तैयार रहना है। If you want a house, be ready. अभी घर चाहिए, If you want a house, एक विला चाहिए, if you want a villa, और आपको आइडिया ही नहीं है विला में अंदर जाने के बाद क्या करना, ये करना, कुछ भी नहीं है, you have no idea what you are going to do after तो वो going. कुछ वो फायदा है क्या? It's of no use. आपको बड़ा चर्च चाहिए, You want a big church. आपको आइडिया ही नहीं कैसे उसको चलाने का, You don't have any idea तो how कुछ to. फायदा है? Then is there any use? आपने कार ले लिया You have taken the car, पर उसको चलाने आता ही नहीं, but you don't know how to तो drive. कुछ फायदा है? Is there any use? हालेलुया। वैसे ही Same way. अपने लाइफ में हर चीज के लिए हमको रेडी रहना है, We have to be ready for everything. रेडी रहना है। We have to be ready. आज गुड फ्राइडे है Today is good. तो ये करना करके हमको रेडी रहना है। We have to be ready that these are. ईस्टर आने वाला है, This is उसके coming. लिए रेडी रहना We है, have to be ready. पर विक्ट्री कहाँ से आएगा? But from where the victory? वो गॉड से That आएगा। comes- हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे जो भी खड़े, Whoever is standing. एवरी डे यू शुड बी व्हाट, हर एक दिन क्या करो? रेडी पोजीशन। कौन सा पोजीशन रहना चाहिए आपका? तैयार रहना चाहिए. रेडी रहने चाहिए। You should be ready. चर्च के लिए भाग के आने के लिए रेडी रहने चाहिए, You should be ready to run to the church. म्यूजिक के लिए बजाने के लिए रेडी रहने चाहिए। You have to run for playing the music. दो संडे का दिन कौन कौन आपने बोले ना, Part. रेडी रहने चाहिए। You all have to be ready. अगर सोचो पार्ट बोला लॉक करके गया, मैं नहीं खोलिया करके चले गया, If Part says today I will तो not फिर do, किधर नहीं खड़े हम? then where will we stand? हालेलुया। Hallelujah. जितना इम्पोर्टेंट मैं है इधर, How important the preacher is, उतना इम्पोर्टेंट पार्ट भी है अभी। that important part is. हालेलुया। Hallelujah. इसके लिए चर्च में हर किसी का काम इम्पोर्टेंट होता है, Everyone's job is important in church. पर आपका काम But your work, एकदम बेस्ट रहने चाहिए। it should be the best. आप इधर झाड़ू भी मारे ना, Even if you're cleaning the बेस्ट church, झाड़ू, you have to clean it in the best possible way. चेयर रखे तो बेस्ट वे में रखने चाहिए। If you keep the chair, it should be in the best way. अगर प्रीच किया तो बेस्ट प्रीचिंग रहनी चाहिए। If you are preaching, it should be the best. अगर म्यूजिक बजाए तो बेस्ट म्यूजिक रहनी चाहिए। If you are playing music, it should be the ये best. सब हमारा सैक्रिफाइस है, ऑफरिंग है गॉड के लिए। Because these are the offering. Whatever you do for God, do it in the best way. क्या कर रहे हैं आप? आपका bali दे रहे परमेश्वर को। It is like a living sacrifice for सिर्फ them. पैसा देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। Not only money is important. क्या Only money सिर्फ is not पैसा important. इम्पोर्टेंट नहीं होता, Only money is not important. हर चीज इम्पोर्टेंट होता है गॉड के लिए। Everything is important. परमेश्वर ने एक सवाल दिया था मालूम सबको, You know what? God gave a question. क्या बोला मालूम क्या? उन लोग को जो परमेश्वर को क्रूस पे आज चढ़ाए, The people who crucified Jesus, तू मुझे you नष्ट कर, destroy me. 3 दिन में मैं वापिस आएगा। I will come again in 3 days. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. हम वो वचन पढ़ेंगे We'll read जॉन that. 2 में 19। The book of John, chapter 2, verses 19. Book of John, Yuvanna में. Jesus answered and said to them, destroy this temple, हाँ. and in 3 days I will raise it up. हालेलुया। Hallelujah. हिंदी में पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे उत्तर दिया हाँ कि इस मंदिर को हाँ। ढा दो हाँ और मैं उसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। हालेलुया। और कोई तमिल में? இயேசு அவர்களுக்கு இயேசு அவர்களை விருத்தமாக, ஆஹா. இந்த ஆலயத்தை இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள். இடித்து போடுங்கள் 3 நாளைக்குள்ளே 3 நாள்। இதை எழுப்புவேன் என்றார். हालेलुया। वो सवाल था और गॉड ने परमिशन भी दिया। And God gave the permission. गॉड ने बोला डिस्ट्रॉय कर, बोला, Jesus said, destroy. समझा? गॉड ने बोला परमिशन दिया, God gave the permission. तुम लोग को जो करना है करो। Do what you want.
पर 3 दिन में After 3 days, ये पूरा चीज में चेंज कर I दूंगा। will raise it up. हालेलुया। Hallelujah. मेरा बहनों भाइयों, My dear brothers, आपका लाइफ ना your life, किधर भी रहने दो आज, wherever it is, पर आने वाले तीसरे दिन में the third day, यहाँ पे जो भी खड़े whoever is here, सबका लाइफ चेंज हो जाएगा। everyone's life. अगर आप will बिलीव change. करते हो तो क्या करो? आज आप अपने आप को एक सवाल दो, You question yourself, challenge yourself, लोगों को सवाल दो, challenge the people against you, शैतान को सवाल दो, challenge the Satan बीमारी against को सवाल दो, you, challenge the sickness against you, सिचुएशन को सवाल दो। challenge the situation. तू आज कुछ भी कर ले, मुझे Do whatever you want today. इनके 3 दिन में Third day, परमेश्वर मुझे जीत देगा। I will get victory. क्या by देगा? Jesus. मेरा बिजनेस में मुझे जीत देगा, I will get मेरे कामों में मुझे जीत देगा, in my work. मेरा मिनिस्ट्री में मुझे जीत देगा, I will get victory in my ministry. मेरा लाइफ में मुझे मिनिस्ट्री जीत देगा। In my life, I will get victory. आर वी रेडी क्या हम तैयार है? टू विन बैटल्स? बात है ना, पाशा खड़े। हाँ, आर वी रेडी? हम तैयार है. तैयार है? जीतने के लिए कौन कौन तैयार है? How many of you are ready? आज क्रूस पे चढ़ेंगे। Today we'll carry the cross. हमारा सोच को, Our thoughts, हमारे घमंड को, our pride, हमारा गुस्से को, our wrath, हमारा बीमारियों को, our sickness, हमारे कमियों को our lack. हम क्रूस पे आज चढ़ाएंगे। We will crucify it हालेलुया। क्योंकि हमको ये मालूम है, because we know तीसरा दिन, third day, कितना दिन? third day, तीसरा दिन, third day, सिर्फ 3 दिन रुकना है भाई। only 3 days. कितने दिन रुकने का आप लोगों? How many days? थर्ड डे Only 3. आई विल राइज एंड शाइन। मैं उठूंगा Hallelujah. और मैं चमकूंगा. तो किसको लगता है कि आप राइज एंड शाइन होने वाले? How many of you believe you will rise? आपका हर सिचुएशन से यू विल शाइन। Every situation, whatever यू you विल are नॉट in, बी डाउन माय फ्रेंड्स। आप नीचे ही नहीं रहोगे. गॉड विल लिफ्ट यू अप परमेश्वर आपको ऊंचा इन उठाएगा. दिस 3 days। और ये 3 दिन आई में प्रोफेसाई ऑन यू, मैं भविष्य नो बताऊंगा. मैटर व्हाट सिचुएशन, जो भी आपका नो परिस्थिति मैटर है, व्हाट डिजीज, जो भी आपका नो बीमारी है, मैटर व्हाट कंडीशन, जो भी आपका परिस्थिति आई है, प्रोफेसाई नेम ऑफ लॉर्ड जीसस मैं यीशु क्राइस्ट। मसीह के नाम से भविष्य देता नेक्स्ट थर्ड डे हूं. तीसरा दिन योर लाइफ विल चेंज कंप्लीट। आपका जिंदगी पूरा बदलेगा. यू विल बी नो मोर डाउन। अभी आप नीचे नहीं हो. आपका सर ऊंचा उठाएगा परमेश्वर। योर हेड विल बी लिफ्टेड हाई. बिलीव करते हैं? आप विश्वास कर रहे हो? ये एक दिन बड़ा होएगा। क्या होएगा? दिस विल ग्रो। और ये सब अपना जो भी यूथ लोग है और जो हमारे लिए काम करते हैं, जो गॉड के लिए काम करते हैं, उन लोग के थ्रू ही होने वाला है। आपको रख के ही परमेश्वर बड़ा काम करेगा। Amen. आप ये मत सोचो मेरे को राइचियस बनना है, ये सब बोलता है मेरे को एकदम होली रहना है। आई डोंट बिलीव इन दैट। यू हैव टू बी होली, बट यू कैन नॉट बी होली। जोना लास्ट तक he was not happy, but still God made him to preach. No matter who you are, आप कैसे भी रहो, परमेश्वर आपको चुन लिया ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप चुने हुए लोग हैं, ऐसा लग रहा है, तो बहुत खुश रहो, क्योंकि आपका लाइफ ये 3 दिन में चेंज होने वाला है। हालेलुया। Hallelujah. अगर इस 3 दिन में आपका लाइफ में कुछ भी चीज, छोटा भी चीज आपको लगा बहुत खुश है, आप संडे को आके टेस्टिमनी दो। Amen. इन दिस 3 days कुछ भी हो सकता है, छोटा चीज। आप नया कपड़ा लिए रहेंगे तो भी आके परमेश्वर को धन्यवाद दो। आप गिरने वाले थे, बच गए, उसके लिए भी धन्यवाद दो। हर एक चीज काउंट होता है। बट बी रेडी, दिस 3 days गॉड विल चेंज। तो हम सब एक फैमिली है, आगे भी ऐसे रहने चाहिए, और लोगों से आके मिलेंगे, परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में हमको आना है, मिलना है, तो प्लीज़ लेट अस नो, हम लोग आएंगे, क्योंकि यही काम है। सबको एक दिन रिटायरमेंट मिलता है, पर प्रीचर को नहीं मिलता। हम आंखें बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आई ब्लेस ईच एंड एवरी वन हु इज स्टैंडिंग ओवर, हु इज प्रेइंग गॉड। थैंक यू फॉर taking that cross which was for me, God, because of my sin
because of my activities, because of my stubbornness, because of my ego, because of me. You had to go through all that, and you did it for me, God. You set me free. You took the stripes on you so that I can be healed. What a sacrifice, and what a love. There's no match, God. There's no match about it. Today, the entire world, people must be preaching about you, talking about you, remembering about you. It's not that because you deserve it, God. You are more than that. What you have done for this mankind, nobody can do this. God, we are preparing ourselves, but I know that victory will come from you. Amen. I pray and prophesy over all people who are standing here. In their heart, whatever they desire, God, whatever they are thinking, their plans, in the name of Lord Jesus Christ, let that be successful. Amen. Give them the victory. Show them you are the God. Break them and make them again. You have settled everything, God. You have finished everything for me. I don't have to do anything. I just have to stand, God. Amen. Give me the strength to stand. Yes. Give me the wisdom to stand. Yes. Give me that heart to stand for the soul, Amen. for the church, for the church members, and all over the cross, God, for the pastors, evangelists, prophets, teachers. Bless each and every one, God. Financially, wisdom is all should come from you, God. Amen. Use us, standing all the youth and the people. Use us for your glory in this Amen. Palava city. Amen. Give us a gift where we can operate and help people, God. Again, till we meet each other, bless our families, our business, our education, our work, our plans, and ourselves, God. In Jesus Christ's name, I make this small prayer. Amen. 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 We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.